Good morning, students. Chapter 1 is nutrition in plants. So, students, what is nutrition? First, we will learn about nutrition and introduction. Here it is written the definition of nutrition is the process of utilization of food by living organisms to obtain energy is called nutrition. इट मीन्स जो फूड रहता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब खाते हैं तो फूड से हमें एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड के एसेंशियल जो ज़रूरी रहता है फूड में वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है. ये कंपोनेंट्स को भी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है. So, modes of nutrition. Okay. Nutrition is the science that interprets the interaction of nutrients and other substances in food in relation to maintenance, growth, reproduction, health, and disease of an organism. It includes food intake, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. What is include? Nutrition means which type of food we have to take. What is the process? Firstly, absorption, assimilation, biosynthesis, catabolism, and excretion. So, next topic is mode of nutrition. So, it is seen that it is the main points of this chapter which I have underlined it, so I explain you. ये देखा गया कि जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पे और फूड पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. उसको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मीन्स animals and human beings which depends on plants directly and indirectly. Then green plants are called autotrophs. जो green plants रहते हैं वो autotrophs होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं by the process of photosynthesis. As we all know that green plants make their own food with the help of photosynthesis. जो photosynthesis की process होती है उससे green plants अपना खाना खुद बनाते हैं. और वो कैसे बनाते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है उनको फूड बनाने में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के प्रेजेंट में वो अपना खाना बनाते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बाय यूजिंग सनलाइट. Energy in the presence of chlorophyll. Okay. In the view of above explanation, there are two modes of nutrition. Two modes होते हैं न्यूट्रिशन के, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स, फर्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉप्स एंड नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉप्स. सो फर्स्ट मोड, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. So in photoautotropic nutrition, light is the energy source. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में लाइट इम्पॉर्टेंट रहती है. जब लाइट होती है तभी ऑटोट्रॉपिक जो प्लांट्स रहते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और ऑटोट्रॉपिक में क्या आता है? ग्रीन प्लांट्स, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा. सो as I have told you, plants photosynthesis. We have read here the process of photosynthesis already. So, what is different is oxygen is released during photosynthesis. जब photosynthesis की process होती है तो oxygen release हो जाती है. So, here is the process of photosynthesis. ये different types of definitions हैं जिसको photosynthesis की process भी कहा जा सकता है. बात वही है पर अलग अलग टाइप से डेफिनेशंस दी है. लाइक द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट. द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर.
called glucose. ये सारी different types of definitions. So here is the diagram of photosynthesis. जब sunlight आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है. The diagram is showing. And water, root takes water from here. Now factors affecting photosynthesis. There are several factors that require the constant rate of photosynthesis. First is light intensity. Second is the concentration of CO2. Here light intensity. जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हाई जो फोटोसिंथेसिस होती है वो हायर रेट में होती है, और दूसरी तरफ जब लाइट इंटेंसिटी लो होती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस लोअर रेट में हो जाती है. और सेकेंड फैक्टर विच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. जब CO2 ज़्यादा होती है, जब हायर कंसंट्रेशन होता है CO2 का, तो ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस बढ़ाने में. यूजुअली कितनी रेंज होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की, 300 to 400 parts per million. It is enough for photosynthesis. Here is the diagram of rate of photosynthesis. Now next is temperature. Temperature, water and pollution. These are also the factors which affect photosynthesis. Temperature कितना होना चाहिए, 25 डिग्री to 35 डिग्री सेल्सियस. एंड वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर वाटर की कमी हो जाती है प्लांट को तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. वो कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से इनटेक नहीं कर पाता है. इससे अगर वाटर की कमी होती है तो स्टोमेटा ओपन नहीं हो पाता है, उसकी ओपनिंग में प्रॉब्लम जाती है और वाटर दे हैव स्टोर्ड इनसाइड. नेक्स्ट इज़ पॉल्यूशन. और कभी कभी जैसे हवा चलती है तो एयर पॉल्यूशन के कारण लीव्स पे डस्ट जम जाती है, तो उससे जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा के वो ब्लॉक हो जाते हैं. जहाँ से अगर वो ब्लॉक हो जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वो पोर्स के अंदर जा ही नहीं पाती है क्योंकि डस्ट की वजह से, तो स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाती है. नाउ photosynthesis equation. This is the equation of photosynthesis. 6 CO2 plus 6 H2O. It forms 6 C6H12 O6 plus 6 O2. Here we know that CO2 means carbon dioxide, H2 means hydrogen and O means oxygen. So here is green leaves, the food factories of plants. Green leaves को food factories भी कहा जाता है plants, क्योंकि with the help of green leaves plant make their own food. लीव्स की वजह से ही वो अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं उसके अंदर स्टोमेटा रहते हैं, गार्ड सेल्स रहते हैं लीव्स में, उसी के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाता है. एंड हैव रिटन दैट द लीव्स आर फ्लैटेड. वो लीव्स फ्लैट होती हैं और बहुत सारा एरिया रहता है जहाँ से वो सनलाइट ले सकते हैं, और वो थिन रहती है तो सनलाइट अच्छे से सेल्स के अंदर चली जाती है. देन दे हैव अ लार्ज एयर स्पेस. और उस लीफ में इतनी स्पेस होती है कि वो एयर अच्छे से अंदर चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी वो एंटर कर लेते हैं सेल्स. लीव्स को नेटवर्क होता है जाइलम वेसल्स दैट रन थ्रू देयर वेन्स. जाइलम वेसल्स मीन्स जो वाटर रहता है वो वाटर वेन्स के थ्रू प्लांट में जाता है. They supply water to all the cells for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के लिए वो वाटर सप्लाई करता है. लीव्स में स्टोमेटा रहती है, स्टोमेटा के थ्रू
through stomata carbon dioxide enters leaves. Here is the diagram of stomata. इसमें देखिए गार्ड सेल्स दिए गए हैं और दिस वन इज क्लोज्ड स्टोमेटा. थ्रू ओपन स्टोमेटा, ये ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू जाती है. एट नाइट जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, जब सनलाइट भी नहीं होती, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो जाते हैं. जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं सेल्स. थोड़ी सी बस गैप रहती है, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड जाती है इसलिए. नाउ सिंथेसिस ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज से दूसरे न्यूट्रिएंट्स को कैसे कंबाइन किया जाता है वो इसमें दिया गया है. सो हियर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है वो यूज़ होता है दूसरे न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड को मिलाने के लिए, कंबाइन करने के लिए. और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है वो जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज और स्टार्च होता है. मतलब ये थ्रू ये कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इट मीन्स वो एनिमल्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते.